Good morning, all the students of class 8. My dear students, I have taught all of you lesson number 5, The Beggar in the Blanket. अब इस लेसन के जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल हैं, ट्रिक द करेक्ट ऑप्शन, ज़रा इस पर आप एक नज़र देख लेंगे। 2 brothers lived in a city village hill. तो 2 brothers lived in a village. That village was situated near the edge of the forest. Are not the same as brother. Uncle, friend, sister. अब इन तीनों में से आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स आर नॉट द सेम एज ब्रदर. His brother, wife, father pointed toward the corner. His wife pointed toward the corner. I like to help. मैं पसंद करता हूँ. Her, him, you. तो I like to help you. I have so many friends. अब यहाँ पर देखिए, Kailash wife was a gentle and a thoughtful woman. Kailash crossed the road and rapped at the Tom's door. Tom began to squirm and grimace as if he were in pain. The next evening, Kailash came home and found his wife weeping and trembling. Kailash's wife stepped forward and bowed. अब क्वेश्चन आंसर पर एक नज़र देख लेंगे आप लोग. What were the difference in the nature of the 2 brothers? बच्चों, पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 भाइयों के स्वभाव में क्या अंतर था. How did Kailash's wife feel about his attitude towards his brother? कैलेश की पत्नी ने कैसा महसूस की उसके लगाव के बारे में जो उसके भाई के था. What terrible things had happened at Kailash's house? कैलेश के घर में क्या भयंकर घटना घट गई थी. How did Kailash react to the news of the murder? कैलेश ने हत्या के समाचार से कैसा प्रतिक्रिया किया था. Whom was he most worried about? किससे वह बहुत ज़्यादा चिंतित था. Did Kailash's friends help him to solve his problem? क्या कैलेश के मित्र लोगों ने उनकी समस्या को हल करने में मदद किया. Who helped him at the end? और अंत में उनको कौन मदद किया. Why did Kailash's wife invent the story of killing the beggar? कैलेश की पत्नी ने क्यों एक भिखारी की हत्या की कहानी गढ़ी थी. और नीचे कुछ शब्द से भर करके उसको एक सही शब्द बनाना है, जिसको कि आप लोग कर ही सकते हैं. अब नीचे उसके फन विथ ग्रामर में देख लेंगे. We ran fast but we missed the train. Give me water to drink or I shall die of thirst. Through his disabled, हालांकि दाऊ होना चाहिए था, THOUGH. Yet he is confident. I would rather suffer rather than oblige. Wisdom is better than rubies. He is neither an idler nor a gambler. Correct the given sentence. We are work hard since last year. The we had been work hard since last year. I waited at home. I had been waiting at home for her since 10 o'clock. He had been born in 1984. He was born. I have written a letter. मतलब I wrote a letter. और बाकी पार्ट जो हैं उसको उतार दीजिएगा. इस तरह से
ये लेसन अब समाप्त होता है और हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं लेसन नंबर 6 में। द थॉर्न ऑफ जस्टिस, द न्याय का गद्दी। न्याय का गद्दी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। द विलेज हैड एन ओपन स्पेस and there was a row of stone arranged in a certain way. The village had an open space. गांव में एक खुला जगह था और there was a row of stones, और पत्थर की एक पंक्तियां लगी थी जो कि एक निश्चित आकार से सजे हुए थे। At one end there was a raised mound, और एक छोर पर एक उभरा हुआ टीला था, which looked like a throne, जो कि एक गद्दी की तरह दिखाई देता था, and the smaller stones were arranged around it, और छोटे छोटे पत्थर इसके चारों ओर व्यवस्थित था। The children from the village would bring their cows to graze on the grass that grew on the ruins, and they noticed the stones. The children from the village, गांव के बच्चे वहाँ पर अपना गाय चराने ले जाते थे, और that grew on the ruins, जो कि बड़ा हुआ था वह टीना, एंड दे नोटिस्ड द स्टोन्स, और वे लोग उस पत्थर को देखे। दे सा द लार्ज माउंड एंड द वे द स्टोन वेयर अरेंज्ड, एंड वन ऑफ देम शाउटेड। उन लोगों ने उस टीला को देखा। दे सा द लार्ज माउंट, एक बड़ा टीला को देखा, एंड द वे द स्टोन वेयर अरेंज, और पत्थर जिस तरीके से व्यवस्थित किया हुआ था उनमें से एक ने चीखा, इट लुक्स लाइक ए किंग जजमेंट सीट, यह तो राजा के एक न्याय की सीट जैसा दिखाई देता है। अनदर बॉय क्विकली इन्वेंटेड ए गेम टू फिट द सिचुएशन, दूसरे बच्चे ने जल्दी से एक गेम का आविष्कार किया इस सिचुएशन को फिट करने के लिए। लेट अस प्ले एट हैविंग ट्रायल्स, हम लोग इसके लिए एक ट्रायल सीखें, हम लोग एक ट्रायल करें ईश्वर। ही सजेस्टेड, आई विल सिट ऑन द माउंट एंड बी द जज एंड सोल्व योर क्वारल्स, मैं टीला पर बैठ जाऊंगा और मैं जज हो जाऊंगा और तुम लोगों के झगड़ा को हल कर दूंगा। बढ़िया बात है। ये जैसा कि फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये फिगर में एक लड़का जो है टीला पर बैठा हुआ है और गायें हैं चारों तरफ, और यह लड़का जो है कि नहीं लोगों के झगड़े को निपटारा करने में लगा हुआ है। The children liked the idea and began to make up quarrel at once. बच्चे लोगों ने इस आइडिया को पसंद किया और उन लोगों ने तुरंत झगड़ा शुरू कर दिया। They described their problems to the judge. उन लोगों ने अपनी समस्या को जज के सामने वर्णन किया। The other boys laughed and shouted during the game. दूसरे लड़के हंसे और चीखे गेम के दौरान। But the boy sitting on the judgment seat was Solomon and strained. लेकिन लड़का जो जजमेंट की सीट पर बैठा हुआ था वह सख्त और गंभीर था। दूसरे बच्चे तो हंस रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन जो लड़का सीट पर बैठा हुआ था वह सख्त और गंभीर था।
ही टूक द स्टोरीज सीरियसली एंड लिस्टेनेड टू देम। वह इस कहानी को गंभीरतापूर्वक लिया और उन लोगों की बातों को सुना। अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक। ही जजमेंट वेयर एज यूजुअली वेरी फेयर। उनका फैसला अक्सर बहुत साफ सुथरा होता था। वह बच्चा जो जजमेंट करता था वह बिल्कुल सही सही करता था। द बॉयज एक्साइटेड। लड़के उत्तेजित हो गए। रिटर्न इन द इवनिंग एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स। शाम को लौटे और अपने माता पिता को बताए व्हाट हैड हैपेंड, जो घटना घटी थी। बच्चे लौट कर के सामने इस घटना के बारे में अपने अपने माता पिता के पास चर्चा की। एट फर्स्ट द पेरेंट्स वेयर एम्यूज्ड। सबसे पहले तो माता पिता थे वह जो है कि नहीं इसको मजाक किए। बट एज द डेज वेंट बाय, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, दे वेयर सरप्राइज एट द बॉयज विजडम। वे लोग बच्चे की बुद्धि से आश्चर्यचकित हो गए। इट वॉज बॉयनेड हिज ईयर्स। इस तरह से उनका सालों बीत गया। हिज जजमेंट सीम्स टू बी मोर जस्ट देन दोज ऑफ द एल्डर्स इन द विलेज। उनका फैसला इस प्रकार था जैसा कि गांव में कोई बड़े लोग करते हैं। बड़े लोग की तरह वह जो है कि नहीं फैसला करता था। देयर वाज एल्सो समथिंग मैजिकल अबाउट द माउंट। और उस टीले में कुछ जादुई जैसी चीज थी। द बॉय वाज ए काउ हर्ड एंड एज प्लेफुल एज अदर चिल्ड्रेन। द बॉय वाज ए काउ हर्ड। लड़के चरवाहा थे और इतने खुश थे जितना कि दूसरे। बट व्हेन ही सैट ऑन द माउंट, लेकिन जैसे वे टीलों पर बैठ जाते थे, ही बिकेम थॉटफुल एंड स्पोक वाइजली। वह जो है बिल्कुल थॉटफुल हो जाते थे, विचारमान हो जाते थे और बुद्धिमत्ता पूर्वक बोलते थे। बहुत विचित्र टीला था यह टीला। उस बच्चे को, जो बच्चा जब उस पर बैठता था तो बिल्कुल उसमें एक अच्छा विचार आ जाता था, एक जजमेंट की भावना उसमें बलवती हो जाती थी। अब आगे क्या होता है ये अगले दिन हम करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। थैंक यू।